Hello dear students, in this video we are going to cover exercise 2.5 chapter 2 linear equation in one variable class 8. Right, what is the topic for this exercise? What we are going to do in this exercise, we are reducing equations to the simpler form. We are having linear equations in one variable. We have to firstly reduce them into simpler form and then we have to solve them to find out the value of x. चलिए start करते हैं. How we can start? Again same. We are having two terms on left hand side and two terms on right hand side. One term is containing variable x and this term is also containing variable x. Terms which are containing variable, we have to transpose them on one side, and terms which are without variable, constants, we have to transpose on another side. So this x upon 2 is on this side. Transpose this x upon 3. On left hand side, you will get minus x upon 3. This 1 upon 4 is already है. जब आप इसको इस साइड पे ट्रांसपोज करोगे तो ये इधर सब्ट्रैक्ट हो रहा था, दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा? प्लस 1 upon 5. Right, now you can see you need to take LCM as fractions are not like fractions. LCM will be 6. 2 how many is a 6? 2 3 is a 6. किससे मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमिनेटर को? 3 से. 3x. 3 how many is a 6? 2 a. तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2x. Here we are having 5 4s are 20. 4 how many is a 20? 4 5s are ऊपर 5 से मल्टीप्लाई होगा. 5 4s are 20. ऊपर किससे मल्टीप्लाई होगा? 4 से. What you will get here? 3x minus 2x is x upon 6. And 5 plus 4 is 9 upon 20. Find out the value of x from here. मैं ऊपर कर रही हूँ. x upon 6 is equal to 9 upon 20. Right? This is the next step. Now you have to find out the value of x. तो क्या करेंगे? We will transpose this 6 on another side. ये 6x से क्या हो रहा था? डिवाइड. उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई. x is equal to 9 upon 20 multiply by 6. Do we have any common factor among numerator and denominator? Yes. 2 3s are 6. 2 10s are 20. X is equal to multiply the terms which are there in the numerator. 9 3s are factors. 9 3s are 27 upon 10. X will be 2.7 is our answer. Right? Now let's move on next question. In this second question, beta, we are having 3 terms on left hand side and only 1 term on right hand side. All these 3 terms containing variable means we have to solve them all 3 together, right? But their denominators are different. We have to make their denominators same by taking LCM. तो चलिए इनका LCM ले लेते हैं. What is the LCM of 2, 4 and 6? आता सबको लेना. This is 2, 4 and 6. 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6. This is, it will go with 2, 1s are 3 as it is. 3, 1, 1, 1. 3 2s are 6, 2s are 12. What is the LCM? 12 is the LCM. 2 how many is 12? 2 6 are 12. तो ऊपर न्यूमिनेटर किससे मल्टीप्लाई होगा? 6 से. This is 6n. Right? 4 how many is 12? 4 3s are. तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई होगा? 3 से. 3 3s are 9n. 6 how many is 12? 2s are. तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई होगा? 2 से. 5 2s are 10n is equal to 21. अब how we can solve them all 3? हम दो दो करके सॉल्व करेंगे. पहले हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं. 6n minus 9n. माइनस 9n लार्जर है ना, तो साइन किसका आएगा? माइनस का. और दोनों क्या होंगे? सब्ट्रैक्ट. राइट, बिकॉज वन इज पॉजिटिव another one is negative. तो we need to subtract them with the sign of a greater number. This is minus 9. It will gives us minus 3n plus 10n upon 12 is equal to 21. Now solve them both. Again they both are having different signs. तो subtract होंगे with the sign of larger number. तो larger कौन सा है? 10.
इसके साथ साइन कौन सा है, पॉजिटिव, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे पॉजिटिव साइन आएगा. 10 - 3 इज पॉजिटिव 7n डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 21. बाकी मैं इधर कर रही हूँ. दिस इज हमारे पास कितना बच गया, 7n अपॉन 12 इज इक्वल टू 21. तो अब इसकी वैल्यू निकालो. क्या करोगे, n की वैल्यू निकालनी है ना, तो ये जो फ्रैक्शन लगा है आप इसको इस साइड पे ले जाओ और इसका रेसिप्रोकल कर दो, क्योंकि आप 12 को इधर लेके जाओगे ये मल्टीप्लाई होगा, 7 को लेके आओगे तो वो डिवाइड होगा, मीन्स अल्टीमेटली इसका रेसिप्रोकल ही होगा ना. तो यू कैन 21 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 7. 7 हाउ मेनी जा, 3 जा, n इज इक्वल टू 36 will be our answer, right? Now let's move on next question. Okay, this is question number 3. How many terms do we have on left hand side? 3 terms, x, 7 and -8 upon x. Terms plus minus के sign से separate होती हैं. This is first term, second term and third term. On this one side we are having only 2 terms. Among these 3 terms, 2 terms are having variable x. And on this side we are having only 1 term which is containing variable. We have to transpose all these 3 terms on one side, right? Terms with the variable on one side and term without variable, constants should be on the another one side, right? This x is there. अब ये ट्रांसपोज तो नहीं हुआ ना, ये इसी साइड पे है और इसका साइन कौन सा है, नेगेटिव. टर्म जब भी मूव करेगी एक ही साइड पे अपना साइन अपने साथ ही रखेगी बेटा. दिस इज -8x अपॉन 3. इसको ट्रांसपोज करोगे इस साइड पे तो ये क्रॉस करेगा ना मल्टीप्लाई का साइन को, तो इस साइड पे जाके इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. दिस इज प्लस 5x अपॉन 2 इज इक्वल टू 17 अपॉन 6. ये इधर ऐड हो रहा था, उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट. हाउ यू कैन सॉल्व ऑल दीज 3 टर्म्स? वी हैव टू मेक द डिनोमिनेटर्स सेम, बिकॉज फ्रैक्शंस हमेशा लाइक फ्रैक्शंस बन के ही सॉल्व होती हैं जब भी हमें उनको प्लस और माइनस करना होता है, मल्टीप्लाई के लिए नहीं करना होता. ठीक है. व्हाट इज द एलसीएम, 6. यहाँ पे डिनोमिनेटर कितना है, 1. 1 6 जा तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई होगा, 6x. 3 2 जा 6 तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई होगा. 8 2 जा 16x, राइट. 2 3 जा 6 ऊपर 3 से मल्टीप्लाई होगा 15x, राइट. Here you can take LCM 6. यहाँ पे डिनोमिनेटर 1 ही है. 6 1 जा 6 तो ऊपर 17 1 जा 17. 1 6 जा तो 7 6 जा 42. Now solve them all. 6x minus 16x. You will get minus 10x plus 15x upon 6. On this side we are having 42 minus 17. नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि 42 बड़ा है ना. अब 42 में से 17 माइनस करो, देखो कितना आता है. पहले तो आप यू विल गेट कितना आएगा, माइनस 25 upon 6, right? Now solve them both. What you will get? This is 15x minus 10x. It gives us 5x. Positive, negative, negative, positive. Subtract होंगे with the sign of larger number, और larger कौन सा 15, तो positive sign आएगा, right? Divided by 6 is equal to minus 25 upon 6. अब x की वैल्यू चाहिए तो x का जो भी कोफिशिएंट है उसको ट्रांसपोज कर दो. अगर ये फ्रैक्शन में है तो फ्रैक्शन दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल. x इज इक्वल टू माइनस 25 अपॉन 6 इज इक्वल टू 6 अपॉन 5. कैंसल, 1 1 जा 5 1 जा 5 5 जा. x इज इक्वल टू माइनस 5 इज आवर आंसर. फाइन. ओके, अब ये वाले क्वेश्चंस थोड़े से डिफरेंट है. हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. अब देखो, अब हम इसमें कैसे करेंगे. इसका भी डिनोमिनेटर जो है हमारे पास कॉमन डिनोमिनेटर 3 और कॉमन डिनोमिनेटर 5 है ना. ऑलरेडी डिनोमिनेटर्स कॉमन है. कैसे टर्म्स को ट्रांसपोज करेंगे.
बेटा देखो करने को तो बहुत सारे वेज हैं, चाहे आप इसको इस साइड पे ले आओ फिर सब्ट्रैक्ट कर दो. अनदर वे इज डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो डिनोमिनेटर को और इसको इस साइड पे. यू विल गेट है 5 multiply by x minus 5 and here you will get 3 multiply by x minus 3, right? Now use distributive property to open these brackets. 5x is 5x, 5 5s are 25, 3x, 3 3s are minus 9, right? Now transpose the term with the variable on one side. 5x minus 3x minus 9 is already here. टर्म का साइन हमेशा उसके आगे होता है, इसके आगे माइनस का साइन है, ये 9 का साइन है, 3x का नहीं है. माइनस 9, ये 25 उस साइड पे जाएगा तो प्लस 25, राइट. 5x minus 3x gives us 2x. 25 minus 9, what is 25 minus 9? This is 16. X is equal to positive 16 because 25 is the larger one and it is positive. 16 upon 2. 2 how many is that? 8 is. What is the value of x? X is equal to 8. Right. Otherwise आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते थे बेटा. x minus 5 upon 3. आप इस टर्म को इस साइड पे ले जाते. Minus x minus 3 upon 5 is equal to 0. Now you can take LCM. पहले तो इधर ब्रैकेट्स लगा लो क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ. डिनोमिनेटर LCM विल बी 15. 3 5s ऊपर किससे मल्टीप्लाई होगा? 5 से. 5x माइनस 5 माइनस 5 3s इससे इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से. x माइनस 3 इज इक्वल टू 0. नाउ ओपन दीज ब्रैकेट्स. 5x माइनस 25. जब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये नेगेटिव साइन है इसके बाहर, ये भी अंदर मल्टीप्लाई होगा और अंदर की सारी टर्म्स के साइंस क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे. माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 3 और ये 15 इस साइड पे ट्रांसपोज हो जाएगा. 0 मल्टीप्लाई बाय 15. 5x माइनस 3x इकट्ठा लिख लो. माइनस 25 प्लस 3 इकट्ठा लिख लो और ये हो गया 0 बिकॉज 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज 0. 5 माइनस 3 इज 2x. 25 माइनस 3 इज 22. अरे ये गलत कैसे आ रहा है सर? नहीं, दिस इज 3 3s are 9 ना. दिस शुड बी 9. दिस इज 9, राइट. 25 minus 9 is minus 16 is equal to 0. 2x is equal to 16 and x is equal to 16 upon 2. तो x कितना आ गया हमारे पास? 8. Is it clear? तो आपको ये वाला मेथड ज़्यादा इजी है, आप इस मेथड से करिए, ठीक है. ओके, दिस इज़ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. अब जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा ट्रिकी हो रहे हैं, है ना. तो इसमें अब both these two terms are containing variable and this is also having variable t. तो सबसे पहले हम इस t को इस साइड पे ट्रांसपोज कर लेते हैं. This is 3t minus 2 upon 4. This negative sign is common among both of them. 2t plus 3 upon 3 plus t and we left with only 2 by 3 on right hand side. What we will do next? We will take LCM. What is the LCM? 4, 3 और 1 का LCM 12, right? 4, how many is 12? 3s. तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई होगा? 3 से. दोनों टर्म्स को ब्रैकेट डालना है यहाँ पे. 3 मल्टीप्लाई बाय 3t माइनस 2 माइनस 3 4s are 12. ऊपर किससे मल्टीप्लाई होगा? 4 से. 4 मल्टीप्लाई बाय 2t प्लस 3, राइट. अब यहाँ पे 1 है तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई होगा? 12t इज इक्वल टू 2 अपॉन 3. नाउ ओपन दीज ब्रैकेट्स. 3 3s are 90. ऊपर करते हैं, है ना. चलिए यहाँ पे करते हैं. 3 3s are 90. अब ये 3 दोनों से मल्टीप्लाई होगा. माइनस 6.
अब ये नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन अंदर जब मल्टीप्लाई होगा तो अंदर वाली सारी टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे. -4 2 -8t माइनस प्लस माइनस -12, राइट, प्लस 12t डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 2/3. अब जितनी भी टर्म्स t वाली हैं उनको पहले इकट्ठा कर लेते हैं. दिस इज 9t. टर्म का साइन हमेशा साथ में ही लेके जाना, भूलना नहीं है, ठीक है. 8t प्लस 12t. अब ये 6 और 12 विदाउट वेरिएबल है, इनको इकट्ठा लिख लेते हैं. इसका साइन नेगेटिव है. -6 -12 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 2/3. अब इसको सॉल्व करो. 9 - 8 only t plus 12t -6 -12 both are having the same signs. We have to add them with the same sign. 12 plus 6 is 18 minus 18 divided by 12 is equal to 2/3. 12t plus t 13t minus 18 divided by 12 is equal to 2/3. अब आगे क्या करेंगे? कुछ आ रहा है माइंड में? क्या करेंगे? We will do cross multiplication, right? Cross multiply them. I am doing here. जब आप इस 3 को इधर मल्टीप्लाई करोगे you will get 3 multiply by 13t minus 18 2 multiply by 12. ये 3 अंदर फिर से मल्टीप्लाई होगा. 39t minus 54 is equal to 24. This is 39t is equal to 24 plus 54. 39t is equal to 8, 78. And t is equal to 78/39. 39, how many is a 78? 2s are? T will be 2. Is it clear? Okay. क्वेश्चन नंबर 6 आप खुद ट्राई करोगे, ठीक है. अभी मैं क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करती हूँ. हाउ मेनी पार्ट्स वी हैव हियर? 10, राइट. सिंप्लीफाई एंड सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस. अब आपको इसको देख के समझ तो आ रहा है ना कि आपको सबसे पहले क्या करना है. यू हैव टू यूज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी टू ओपन दीज ब्रैकेट्स. Distribute this common factor among all the terms inside the bracket. Distribute this 5 among all the terms inside the bracket. You will get here 3t, 3 3s are 9, 5 2s are 10t plus 5. अब तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया. Terms with variable on one side 3t minus 10t without variable on another side plus 9. You will get minus 70 and on this one side 13. T is equal to 13 upon minus 7 will be your answer. Is it clear? चलिए next करते हैं. What we have in question number 8. अब देखो यहाँ पे 15 है. Common factor among both these two. 2 is the common factor among both these two terms. 5 is the common factor among both these two terms. Now we have to distribute this term among all the terms inside the bracket. ये भी अंदर distribute होगा, ये भी अंदर distribute होगा with their signs, right? This is 15y minus 60 minus 2y. अब ये माइनस है ना बेटा, जब नेगेटिव साइन बाहर होता है तो अंदर की सारी टर्म्स के साइन चेंज हो जाते हैं, क्योंकि ये नेगेटिव साइन भी अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा. जब ये इस पॉजिटिव साइन के साथ जाएगा माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव. 2 9s are 18. 5y plus 30 is equal to 0. Now connect the like terms which are having variable y. This is 15y minus 2y
प्लस 5y। बस एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आप टर्म को एक ही साइड पे एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हो ना, तो टर्म अपना साइन साथ में लेके जाएगी, और टर्म का साइन हमेशा उसके आगे होता है, उसके पीछे वाले साइंस के साथ उसका कोई लिंक नहीं होता है। जैसे 60 का साइन नेगेटिव है, 2y का साइन नेगेटिव है, 18 का साइन पॉजिटिव है, 5y का साइन पॉजिटिव है, 30 का साइन पॉजिटिव है। ये जब भी मूव करेंगे अपना साइन अपने साथ ही लेके जाएंगे। 15y, ये 2y के साथ नेगेटिव साइन है, -2y प्लस 5y। अब कौन सा आ गया, -60 प्लस 18 प्लस 30 इज इक्वल टू 0। अब इनको सॉल्व करो, पहले आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 15 माइनस 2 13, 13 पॉजिटिव 13y, 13 प्लस 15 18y। इसको भी कर लो, दिस इज 60 माइनस 30 और माइनस 18 यू विल गेट 12 -12 है ना। चलो पहले चाहे जैसे भी करना है आपको कर लो, आप पहले इन दोनों को कर लो, चाहे अगर आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो यू विल गेट दिस इज 42 प्लस 30 इज इक्वल टू 0, -42 आएगा ना। 18y, जब आप इन दोनों को माइनस करोगे तो यू विल गेट -12 इज इक्वल टू 0। अब y की वैल्यू निकालो, कितनी आएगी, 12 पहले ट्रांसपोज होगा उधर, 18y इज इक्वल टू 12, y विल बी 12 अपॉन 18। डू वी हैव एनी कॉमन फैक्टर अमंग बोथ ऑफ देम? बोथ द नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6। 6 2s are 12, 6 3s are 18, y is 2/3, राइट। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग खुद करोगे। आई एम गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 10। 0.25 मल्टीप्लाई बाय 4। अब ये 0.25 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करते हो, बेटा जब भी आप किसी डेसिमल नंबर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो पहले आप क्या करो, बिना डेसिमल के इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 25 4s are, जब आप 25 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 100, राइट। अब क्या करो, अब इन दोनों का डेसिमल लगा दो। कितना है डिनोमिनेटर यहाँ पे, डेसिमल कितना है, 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगेगा ना, तो यहाँ पे भी 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा दो। कितना आ जाएगा, ओनली 1। इज इट क्लियर? पहले आप इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लो विदाउट डेसिमल, 100। अब डेसिमल प्लेसेस में जितने भी डिजिट्स हैं उनको काउंट कर लो। हाउ मेनी डिजिट्स डू वी हैव आफ्टर डेसिमल, 2। तो लीव 2 डिजिट्स एंड पुट द डेसिमल, यू विल गेट 1.00, तो इट इज 1 ओनली, राइट, f। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो बिना डेसिमल के पहले मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा, 25 3s are 25 इंटू 3 75। अब 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाओगे तो कितना आएगा, 0.07, राइट, दिस इज 0.75। अब इनको मल्टीप्लाई करो, 5 10s are 50। 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगेगा ना, डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स, तो 2 डिजिट्स छोड़ के डेसिमल लगा दो, 0.50। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 5 9s are 45 और 2 डिजिट्स छोड़ के डेसिमल लगाना है, 0.45, राइट। दिस इज f only, here we are also having f। terms which are having variable keep on one side, f minus 0.5। डेसिमल के बाद 0 की कोई वैल्यू होती नहीं है, आप इसको 0.5 लिख सकते हो, 0.5f इज इक्वल टू, ये माइनस है, इसका साइन इधर माइनस ही रहेगा, 0.45, ये इस साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 0.75। अब इन दोनों को ऐड सब्ट्रैक्ट करके देखो, 1 में से 0.5 माइनस करना है, मीन्स 1 में से हाफ माइनस करना है, तो कितना बचेगा, 0.5f। इन दोनों को कैसे करोगे, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो सब्ट्रैक्ट होंगे, साइन किसका आएगा, बड़े वाले नंबर का, तो ऊपर बड़ा वाला नंबर लिख लेते, 0.75, इसमें से क्या माइनस करना है, 0.45। डेसिमल हमेशा डेसिमल के नीचे रखना है, वंस प्लेस वंस के नीचे, 10th 10th, 100th 100th के नीचे, सब्ट्रैक्ट देम,
0, 3, 0, this is decimal 0, this is 0.30 और साइन कौन सा आएगा? पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव साइन है. f 0.30 डिवाइडेड बाय 0.5. अब यहाँ से कैसे कैलकुलेट करोगे आप बेटा क्या करो, f इज इक्वल टू ऊपर वाले डिनोमिनेटर को, ऊपर वाले डेसिमल को हटाओ और नीचे 100 लगाओ, क्योंकि 2 डिजिट्स है ना यहाँ पे, तो 100 आएगा. 0.30 इसका डेसिमल हटा दो और नीचे कितना आ जाएगा? 100. नीचे 0.5 है, इसका डेसिमल हटा के ऊपर जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 10, राइट. 5 डिनोमिनेटर में आएगा, जब इसका डेसिमल रिमूव करोगे तो डिनोमिनेटर में 10 आना था ना, वो अब कहाँ जाएगा? न्यूमिनेटर में. जब न्यूमिनेटर से डेसिमल्स रिमूव होते हैं तो नीचे आता है 100, 10 जो भी है. अगर डिनोमिनेटर से डेसिमल रिमूव होगा तो ये ऊपर जाएगा, राइट. 0 कैंसिल विद 0, दिस 0 कैंसिल विद दिस 0. f इज इक्वल टू 3/5 इज आवर आंसर, राइट. Okay, thank you. Now you have to practice these questions. Okay, beta?